having skill education in their school time. Now it has increased to 7 to 8%. So we are far behind the other countries. And nowadays, if you see the environmental, if you see the other things happening around the world, whether it's a war or many other initiatives, if you see, then everyone has to be self-dependent. Every country has to be self-dependent, whether it's a defense purpose or for manufacturing purpose, anything. So every country is looking for its own manufacturing, self-reliant, self-dependent. How it can be? Through vocational education. Now we should focus on manufacturing more things, startups more. So government is also focusing. So vocational education, if we look into it as it is a wonderful area where we can work on it in the school time, as NCERT has given its intervention by providing new textbooks for class 6 to 10. NEP also focuses. Earlier, we were first focusing vocational education 9 to 12. Now, pre-vocational 6 to 8, and NCERT come up with a new textbook, Kaushal Bodh. Kaushal Bodh is such a wonderful task where children have to do some projects, and those projects very simple, very easy to do. Whether it's a kitchen garden, whether it is a cooking without fire, whether it is a machines, how to deal with machines, what are machines. So very basic things. So it's an exposure as well as learning for children to think about these areas. So this area is again going to be emphasized, and we are very far behind as far as the world, the overall, if we see developing countries or developed countries, they have a lot of intervention, particularly China also, Korea also. So they have wonderful intervention, and more than 90% students are getting skill education in the school time. So India, we are looking after. So this is NEP's main intervention, early school, child care and education, and the second one is vocational. There are many other interventions. Holistic, I am talking about holistic. So holistic progress card. The NCERT came up with 2 new books other than vocational. They are physical education and health and well-being. Second is Kriti, that is art education. यानी कि every child, not only he should be good in curricular activities or content enrichment, he should be better having good health, mental as well as physical. The ways how we should deal, how the teacher should deal, what are the opportunities teachers should give so that children will become with good mental health and physical health. That areas have been taken care of from class 3 to 10. New textbooks have been implemented. Second is art education, means every child should be focusing on other areas, some arts, performing arts, whether he is a good dancer, good he's going musician, or he's doing a good play, or he's a good painter, drawing. So any area, every child should have that habit, or developing that habit. So that scope is also given. Earlier, only few students were going for participation in singing, music, or all. Now every child has to go for it. So that is through a textbook curriculum intervention in the curriculum. So these are the 3 areas. So content is also to be dealt in a very different manner. Pedagogical inputs, pedagogical changes. Second is health, also is taken care, and third is performing arts. So child holistic development is also taken care because of this new NEP intervention. So these are the areas where all the states, all the countries are working, and India is also working for. थैंक यू सो मच सर. सर इससे एक हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एक विजन है एनईपी का, उसमें इंडियन एथोस की बात आती है, डीप रूटेडनेस की बात आती है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो.
देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम that is being intervened through the textbooks also. Everywhere now we are talking about what India has done, what Indian in earlier time, what Indian scientists, mathematicians, they have done, or even literature also. Many of our good literature is available, which developed countries are being using to make many changes in their lives. So here in India now, I have seen the new textbook. जो नई किताबें हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जगह जगह पर हमारे इंडियन स्कॉलर्स, चाहे वो लैंग्वेज में है, मैथमेटिक्स में है, साइंस में है, उनके बारे में, उनकी रिसर्चेस के बारे में बताया गया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे गणित में पाइथागोरस थ्योरम, हम सभी जानते हैं पाइथागोरस, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन, जिन्होंने पाइथागोरस से भी पहले इसका प्रूफ किया था, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो वो प्रूफ अब हमने नाम, जो नई किताबें आई हैं उसमें उसका नाम पाइथागोरस की जगह बोधायन पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, और ये पूरे वर्ल्ड में मान लिया गया है। तो इसका नाम बोधायन पाइथागोरस। तो इंडियन की जो डेवलपमेंट थी पीछे की, जो साइंस की, मैथमेटिक्स की, मेडिसिन की या लिटरेचर की, वो सभी बहुत पुराने टाइम से हैं और हमें रिकॉग्निशन उतनी नहीं मिली। तो अब इन पुस्तकों के माध्यम से, आईटीएस के माध्यम से, और हमारा कौन कौन सी इंटरवेंशन, जैसे एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, गणित में एक और है मिस्टर कापरेकर। कापरेकर कांस्टेंट के नाम से एक उन्होंने नंबर निकाला था, जो 4 डिजिट नंबर ले लो और उनको मैक्सिमम और मिनिमम में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार करने पर वो कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट कापरेकर, वो एक टीचर थे, लेकिन बुक में आने से पहले हम में से बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। तो इस तरह की जो इंडियन मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, अलग अलग लोगों ने जो जो इंटरवेंशन की है, उनके बारे में सबको जागरूक करना, सबको मोटिवेट करना कि इंडियंस ने भी बहुत सी रिसर्च की है। तो इसके बारे में अब पूरा इंटरवेंशन चल रहा है, सभी बुक्स में आप देख भी पा रहे हैं। और इसके अलावा हम मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से हम इंडियंस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, हम वी कैन आल्सो डू अ लॉट, वी हैव डन लॉट एंड वी कैन आल्सो डू। एब्सोल्युटली सर, एक दो बातें मैं और उस पर आपका थोड़ा सा विजन चाहूंगी कि आप अपनी व्यूज बताएं। सर, एक मल्टीलिंगुअलिज्म की बात एनईपी करता है, तो जहाँ पे हम कहते हैं कि मदर टंग जो है वो बच्चे को पढ़ाई जाए या उसमें बच्चे को पढ़ाया जाए बेसिकली, तो उसके बारे में आपकी क्या व्यूज? मल्टीलिंगुइज्म में सबसे पहले तो एक मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने 9th क्लास में पिछले वर्ष, सीबीएसई ने इस साल लागू किया है, हरियाणा ने पिछले वर्ष से ही 9वीं क्लास में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। I was the chairperson of the committee which recommended that this 3 language formula should be implemented from class 9 to 6 to 8 in Haryana we are already implementing। 6 से 8 में पहले से ही संस्कृत, उर्दू या पंजाबी तीनों में से एक भाषा बच्चे जरूर पढ़ते हैं, तो वो पहले से चल रहा था 6 से 8 में, और 9 से 12 में भी हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सीबीएसई ने इस साल से भी इम्प्लीमेंट कर दिया, तो बच्चों को ऑप्शन दी जा रही है। दूसरा, आपने कहा कि अर्ली स्कूल में बच्चे को मदर टंग, देखिए ये आज से नहीं, ये तो जब से पिछली पॉलिसी थी तब भी बात की गई थी, और हमेशा इस बात पे फोकस किया है कि अर्ली केयर जो है बच्चों की, उनकी मदर टंग में होनी चाहिए, उनका जो डिस्कशन है, उनके जो इंटरेक्शन है, वो सभी मदर टंग में होनी चाहिए। जो घर में बोले जाने वाले शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से बच्चों को जोड़े, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो कोई नई चीज सीख रहे हैं, और वो वही चीज जो दैनिक जीवन में वो बातचीत करते हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से नोन टू अननोन की तरफ बढ़े, ऐसा प्रयास किया। जी सर, और एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा होता है एजुकेशन सिस्टम का या स्कूल्स का या फॉर एनी लर्निंग फॉर दैट मैटर, असेसमेंट।
तो एनईपी व्हाट आर द एजुकेशन फॉर्म्स इन स्फीयर ऑफ असेसमेंट, और हम लोग क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, असेसमेंट को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एनईपी ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन तो अभी आप सुन रहे होंगे, 10वीं और 12वीं री एग्जाम। बच्चे के 10th में मार्क्स कम आ गए। 10th का इतना प्रेशर बोर्ड का रहता था बच्चों पे, 12th का इतना प्रेशर रहता था। पहले भी काफी रिलैक्सेशन की है, कंटेंट को मिनिमाइज करते जा रहे हैं और ताकि बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। दूसरा, ये जो सेकंड एग्जाम देने से कोई भी बच्चा जिसके मार्क्स पहले अटेम्प्ट में अच्छे नहीं आ पाए, तो वो पूरे के पूरे पेपर दोबारा दे सकता है। यानी कि बच्चे को कोई बीमार हो गया, कोई और कारण हो गया, या किसी विषय में वो पूरी तैयारी नहीं कर पाया, तो उसको एक दूसरा मौका दें। यानी कि ये बच्चों के दिमाग में ये आए कि ये अल्टीमेट नहीं है, हर चीज अंतिम नहीं होती है, तो दोबारा प्रयास करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक मौका और देने का प्रयास किया। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, मिनिमम। अच्छा, वैसे तो एनईपी ने ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात की है और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की बात की है, तो उन सभी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में हमने एक विशेष जो शुरुआत की थी कि हमने जो सेट एग्जाम है उनको मिनिमाइज कर दिया और स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर दिया, ताकि टीचर अपने अकॉर्डिंग असेस कर सके और सिलेबस सेंट्रलाइज ना करके सिलेबस हम कोशिश करें कि स्कूल वाले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एसबीए कंडक्ट करें। और असेसमेंट पे मेन फोकस जो है, असेसमेंट का देखिए मेन पर्पस होता है कि हम ये जान पाए कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा, कहाँ वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो वो मिस कर रहे हैं। हम असेस करके स्ट्रेटजी बनाएं और उसको लर्निंग का मौका दें। ये है हमारा असेसमेंट का। तो चाहे वो सैट हो या एसबीए हो, जितने जल्दी जल्दी, पहले सीसी आया था उसका भी मकसद यही था, लेकिन फिर भी अब हम जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में टीचर असेस करे खुद और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाकर अगर बच्चों में कोई गैप है तो उसको दोबारा से नई इंटरवेंशन के साथ स्टार्ट करें और बच्चों की लर्निंग को एनहांस करने में एक और प्रयास करें। तो ये है हमारा असेसमेंट। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब ऑब्वियसली हमें अभी और डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपके साथ बताएंगे कि एनईपी 2020 में क्या लिखा गया है, बिकॉज हमारी एक रिसर्च स्टडी भी रही है रीट की, जहां हम टीचर्स के अंदर और स्कूल हेड्स के अंदर अवेयरनेस को एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने ये वेबिनार रखा है। सर, आपने बहुत हमें ब्रीफ में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई कि एनईपी क्या बात कर रहा है और एनईपी जो बात कर रहा है उसमें हरियाणा कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे क्या एफर्ट्स हो रहे हैं एज हरियाणा एजुकेशन सिस्टम। तो थैंक यू सो मच सर। पर जाते जाते एक चीज और एनईपी की बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जहां हम कह रहे हैं कि वो रिजिड जो एक हमारे डिमार्केशन थे कि ये साइंस है, साइंस स्ट्रीम है, ये आर्ट स्ट्रीम है, उसको भी हम कहीं ना कहीं एक मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पे आपके में व्यूज जरूर एक बार सुनना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, ये जो बास्केट ऑफ सब्जेक्ट या डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने वाला जो एरिया है, ये बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। आइडियली तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चूज करे। जब हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो स्कूल्स में कितनी ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर हर बच्चा डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफर करेगा तो कैसे हम उसको क्लासरूम में उसकी फिजिबिलिटी को कैसे करें। तो ये बहुत हमारे लिए एक चैलेंज है कि बच्चों को कैसे हम ये ऑप्शन दें कि बच्चा कोई, फिर भी अभी जैसे हम 30 ऑप्शन नहीं रखें तो कम से कम अभी वो साइंस वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक ले सकें, या जो भी उनका इंटरेस्ट एरिया, पॉलिटिकल साइंस ले सकें, साइंस वाले साइकोलॉजी ले लेते हैं, साइकोलॉजी। तो ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस मिलने शुरू हो गए हैं और बच्चे अब स्कूल भी प्रोविजन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हरियाणा में एक और शुरुआत की गई है कि फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज भी। तो इस तरह के टीचर्स होना, फिर उन टीचर्स का प्रोविजन करना, फिर उनको
हमें टाइम टेबल अलॉट करना, ये सब चैलेंजेस हैं। तो हमें डिफरेंट डिसिप्लिन में बच्चों को तैयार करना और बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से ऑफर करने का मौका देना, ये चुनौतियां हैं हमारे लिए, लेकिन इस पे सभी लगे हुए हैं और काफी हद तक कुछ एरियाज में काम करना शुरू हो गया, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। सर, आपने इतना समय दिया, हमने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आपको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हमने आपके डीपर इनसाइट्स भी ले ली हैं विच आर वेरी वैल्यूएबल एक्चुअली। ये ना केवल हमारे आज के वेबिनार का कोर्स डिसाइड कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे टीचर्स के लिए बड़े मोटिवेशन रहेगा कि हमारा डिपार्टमेंट इतना कुछ कर रहा है। और इट्स नॉट ओनली कि वो ये सिर्फ थोपा जा रहा है इनके ऊपर, लेकिन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे आर आल्सो थिंकिंग अबाउट दोस वेरियस चैलेंजेस दैट कैन बी देयर और उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो सर, आपका जो ये हमारे साथ तो जैसा कि अभी सर ने भी हमें थोड़ा ब्रीफ किया है कि जो NEP 20 है उसके जो कोर प्रिंसिपल हैं बेसिकली दे आर अबाउट फंडामेंटल राइट्स, कि जो हमारी NEP पॉलिसी है वो अलाइन करती है SDG 4 के साथ, इंश्योरिंग इंक्लूसिव इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की से हमने बात की कि मूविंग अवे फ्रॉम रिजिड सेपरेशन बिटवीन साइंस आर्ट्स कॉमर्स टू एनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि अगर बच्चा वो पिक एंड चूज कर सकता है, और लेकिन उसमें थोड़ा सा हर्डल यहाँ पे ये आता है कि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली कि उसकी फिजिबिलिटी पे जैसे सर ने बताया कि वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने के लिए और उसको एफिशिएंटली कर पाने के लिए बेसिकली। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं हो रही हैं। साइंस के बच्चे दे आर गोइंग फॉर साइकोलॉजी, वो अपना 5th-6th सब्जेक्ट कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि ताकि बाद में कॉलेज में जाकर अगर उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस लेने हैं तो दे वो कहीं ना कहीं तैयार हो किसी लेवल पे उसके लिए। रूटिंग एजुकेशन इन इंडियन वैल्यूज व्हाइल एमिंग फॉर ग्लोबल कॉम्पिटेंसेस, एक ये अलग चीज है जो हम कहते हैं इंडियन रूटेडनेस की। सर ने हमें बताया कि किस तरह से NEP 2020 जो है वो 1986 के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे या 1992 के डॉक्यूमेंट्स थे उनसे क्या उसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई है, वो भी सर ने बताया। तो अभी मैं रुको मैम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। जैसे हमने कहा कि 8 चैप्टर्स के अंदर स्कूल एजुकेशन को डिवाइड किया गया है, उसके बारे में। So basically, NEP 2020 aims to identify and foster the unique capabilities of every child. Every child should get a chance to showcase their unique capabilities, to manifest their unique capabilities, and it will result in a strong public education system. And the child, the learner, learns to think, to have a critical analysis of things, and of course to be creative in their work. That is why we have this art education, that is why we have physical education, for the overall holistic development and 360 development of the child. So there are 8 chapters in NEP. Early childhood care and education, for the first time, the Anganwadi system will be part of the education system. Foundational literacy and numeracy, an urgent and necessary prerequisite to learning, literacy also, numeracy also, curtailing dropout rates, ensuring universal access to education at all levels. And a child should be in school, not at the workforce. Curriculum and pedagogy in schools. Learning should be holistic, integrated, enjoyable, and engaging. If it is engaging, it automatically becomes enjoyable. And of course, the focus is on the teacher for career trajectory and training in that regard, and merit-based promotion. That is motivational for the teacher as well. Equitable and inclusive education, learning for all, the socially and educationally disadvantaged groups should not be left out. Efficient resourcing and effective governance through school complexes, clusters, sharing of resources and knowledge, standard setting and accreditation for school education of all schools, whether government or private.
Then the first chapter, we'll just briefly talk about all the chapters. Is that okay, Dr. Sarika? हाँ, अभी तो हम इनको बता देते हैं कि 8 चैप्टर्स क्या हैं, उनमें क्या है, और फिर एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस ठीक करेंगे. है. So chapter 1, Dr. Sarika, the chapter is early childhood care and education. So we all know that it is it's not 10 plus 2, but it is divided into 4 groups. And the first, the 5 years coverage is ages 3 to 8. 3 years Anganwadi, preschool, grade 1, 2. The focus is on play-based, activity-based, discovery while learning. And the aim is for physical and motor development of the child. Besides physical, cognitive development also, social, emotional, ethical development. Because this is as Additional Director Sir told us, these are the learning years. And what the child learns, grasps, and it becomes a lifelong learning. Cultural and artistic development. Every learner has some creativity, and that becomes manifest. The development of communication. Of course, we are talking throughout about wider communication. That's why we have multilingualism. And early language literacy and numeracy. तो वही बात है कि जैसे पहले बच्चा सीधा डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में आता था, अभी लेकिन वो 3 साल, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हमने नॉर्मली देखा था, अब वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी स्पेशली वो चीज आ गई है कि आपको 3 इयर्स की एज पे एंट्री पॉइंट लेना है, ताकि आप हंसते खेलते थोड़ा बहुत आपका जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, आप बेसिक चीजें सीख जाएं और फिर आप ग्रेड 1 करें. So as we are all educators, we know कि there's so much of focus these days from the department and that on foundational literacy and numeracy and trainings are being imparted regarding this. The goal is that every child reads with comprehension and does basic math. There is the Nipun Bharat mission. Timeline is to achieve it by 26-27. And strong literacy and numeracy by grade 3, play-based activity. And after that, we move to chapter 3. This is about dropouts, which we hear from a lot of teachers. कि स्कूल में बच्चे कम आते थे काफी, और जो जुड़ते भी हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि कुछ कारणों की वजह से. तो क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बच्चा एक बार स्कूल से बाहर हो जाता है तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. इट इज नॉट ओनली कि वो एक लिटरेट नहीं बन रहा है, वो आगे एम्प्लॉयबल जो होने का उनका एक स्कोप है वो कहीं खत्म हो जाता है, लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होने का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है. पर साथ साथ जब तक बच्चे स्कूल के साथ जुड़े रहते हैं, वो बहुत सारे हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी जो है उनके काम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चलता रहता है. दे स्टे हैप्पी व्हाइल दे आर एट स्कूल. लेकिन जैसे ही वो किसी भी कारण से स्कूल से बाहर जाते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो कुछ नेगेटिव लाइफ जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो उनके ऊपर आ सकते हैं और वो गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि बच्चों को स्कूल लाया जाए, स्कूल से जोड़ा जाए और स्कूल में रिटेन करने के लिए एफर्ट्स किए जाए. तो इसके बारे में एनपी जो कहती है मैम, उसके ऊपर तो ये ट्रैकिंग ऑफ एवरी चाइल्ड कि बच्चा क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, एंड एक सपोर्ट सिस्टम उसको प्रोवाइड करे. क्योंकि कई बार पेरेंट्स may not be in a position to provide, families may not be position to provide that support. तो स्कूल है, टीचर्स है, वो सपोर्ट सिस्टम देने के लिए टू अंडरस्टैंड कि बच्चा क्यों नहीं स्कूल आ रहा है. और अगर बच्चा स्कूल टीचर की कमी से, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स से, तो एक सोल्यूशन है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस फॉर रिसोर्स शेयरिंग, कि दूसरे स्कूल के टीचर्स के रिसोर्सेज और नॉलेज शेयर होगा. जो अंडर प्रिविलेज बच्चे या अंडर सर्व बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स, and which is a aid for the students. It's also motivational ki yes, there is a support. Hostels, especially hostels for girls, kyunki the schools may be far flung out, or residences may be far flung out. Nutrition ताकि बच्चे हेल्दी रहे. ट्रांसपोर्ट टू फेरी द चिल्ड्रन, ताकि पेरेंट्स भी मेंटली फ्री रहे कि ट्रांसपोर्ट है, बच्चा
स्कूल जाएगा सुरक्षित और लौट आएगा। ओपन स्कूलिंग फॉर अ फ्लेक्सिबल एंड पाथवे कि कई देयर मस्ट बी सम रीजन, कोई मजबूरी होगी तो बच्चा स्कूल नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ओपन स्कूलिंग की लर्निंग नहीं कम हो। जी बिल्कुल। एनईपी 2020 बात करता है कि 100% एनरोलमेंट रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है वो 2030 तक हम अचीव करना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो पाए और हर बच्चा हमारा स्कूल के साथ जुड़ पाए और स्कूल में रह पाए। और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो एनईपी में जिनका जिक्र किया गया है कि उनको इम्प्रूव करने का, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का, बच्चों को स्कूल तक लाने का, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाने के एफर्ट्स चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि क्योंकि कई बार क्या होता था, पेरेंट्स कहते थे कि बच्चे को हम अगर उनकी इतनी नहीं है उनके पास रिसोर्सेज की वो अपना ठीक से गुजारा कर पाते, तो कहते हैं बच्चों को खिलाएं पिलाएं कि उनको स्कूल भेजें। तो उसी के अंतर्गत शायद मिड डे मील का भी प्रोग्राम शुरू किया गया है, बच्चों को न्यूट्रिशन वहीं प्रोवाइड किया जाए ताकि वो, और ये एक बहुत बड़ा इसने रोल प्ले भी किया है कि बच्चे काफी हद तक वो स्कूल में आते हैं और रिटेन रहते हैं, बिकॉज ये सब जो है हैंड होल्डिंग हो रही है, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं और एनईपी और साथ ही साथ जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की आपने बात की कि बच्चों को हॉस्टल दिया जाएगा, बच्चों को उनको मतलब हर लेवल सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं तो उनको सपोर्ट सिस्टम देने की बात की जा रही है। उनके लिए स्कीम्स हैं, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो वो प्रोवाइड की जाती हैं, और ताकि वो बच्चे इंकरेज हों स्कूल में आने के लिए। और पेरेंट्स को भी एक एडेड मोटिवेशन रहता है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो अलॉन्ग विद एजुकेशन उनका कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट है वो ध्यान रख रहा है उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, कम्युनिटीज को एंगेज किया जा रहा है बच्चों को एक बेटर लाइफ क्वालिटी देने के लिए। तो ताकि ये सब चीजें जो है वो स्कूल के माध्यम से करने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो कर्टेल हो रहा है और यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आगे हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो करिकुलम है और जो पेडागोजीज हैं उनका एक बहुत अहम रोल होता है। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल और एंगेजमेंट। तो उसके बारे में एनईपी क्या बात करता है वो मैम आप बताएं प्लीज। So, curriculum and pedagogy in the new 5+3+3+4 system में हम ऑलरेडी आंगनबाड़ी और प्री स्कूल और ईसीसी के बात कर रहे हैं, दैट इज द 5 फिर 3 एंड देन 4 9 to 12। सो इसमें हमने फोकस किया है होलिस्टिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि सिर्फ वो पढ़ाई, बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल को हम रियलाइज करना चाह रहे हैं बच्चे के लिए। तो एकेडमिक सक्सेस प्लस फिजिकल एंड क्रिएटिव ग्रोथ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सो दैट क्रिएटिविटी इज गिवन फोकस ऑन। करिकुलम का कंटेंट का बर्डन अगर कम हो जाए तो दूसरा एसेंशियल लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग, कम कंटेंट में वो एनालाइज करना ज्यादा सीखेगा। मल्टीलिंग्विज्म की बात तो हो ही रही है, एडिशनल डायरेक्टर सर ने हमें बताया था कि हरियाणा ने ऑलरेडी इसको लागू कर दिया लास्ट ईयर से, और इससे वाइडर कम्युनिकेशन, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में जाएगा लर्नर इज मोर प्रिपेयर्ड and essential subjects in skill education, vocational education is part of the essential subjects. Then there's the national curriculum framework for school education, national textbook with local content ताकि आसपास का हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चे को पता हो। असेसमेंट में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ रहे हैं, and you have the new method of assessment and support for gifted students and students with special talents, which is motivational and definitely a help for every student. So Sarika, after this pedagogy, I think we can talk about the shifts, the changes between NPE 86 and NEP 2020. There's a lot of बताओ उड़ो के हो या के डाइट the key. Yes, Sarika.
मैम एक है NETF की हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हम कहते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी फोरम है, उन्होंने बहुत हैंड होल्डिंग है, हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी लेकर आए हैं। तो वो NEP 2020 उसके बारे में क्या बात कर रहा है, उनका क्या रोल है, जो किस तरह से ये NETF जो है ये सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन जो है उसको पहुंचाने के लिए। ओके, एंड टीचर, इसमें इन सब में टीचर कहाँ है? लर्नर के बारे में हम तो काफी बात की, टीचर कहाँ है? टीचर के लिए हमने कुछ ट्रेनिंग्स अरेंज की है फॉर एवरी टीचर, 360 एंड 50 आवर्स ऑफ CPD ट्रेनिंग, एंड ऑफ कोर्स फाउंडेशनल लिटरेसी FLN की ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट दैट ट्रेनिंग, एंड ऑफ कोर्स मेरिट बेस्ड प्रमोशन। टीचर का भी मोटिवेशन होना चाहिए, मोरल डाउन नहीं होने देंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट multidisciplinary education की moving away from just compartmentalizing कि ये साइंस है, ये कॉमर्स है, आर्ट्स है, ये बच्चों को एक चॉइस होना चाहिए। हाँ जी मैम, अभी हम वो वाली बात के बाद हम आ चुके हैं टीचर्स वाले चैप्टर पे। जो टीचर्स का चैप्टर है दैट डील्स विद अगेन सब टॉपिक्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। टीचर रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं कि किस तरह से टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाए और उनको डिप्लॉय किया जाए। उसमें बात की गई है सर्विस एनवायरनमेंट और स्कूल कल्चर की, टीचर्स किस तरह के एनवायरनमेंट में दे कैन परफॉर्म बेटर, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द चेंज एजेंट्स। अभी सिर्फ और वो करिकुलम डेवलपर्स भी हैं, तो एक इंसान जिसे करिकुलम को डेवलप भी करना है, उसको आगे भी बढ़ाना है और एजुकेशन में जो इतने रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं उसको भी पॉसिबल करना है, तो उस व्यक्ति को किस तरह का सर्विस एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो उसकी बात भी NEP करता है। उनका ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब लर्नर्स हैं, एजुकेटर्स जो होते हैं, अगर और हम कंटिन्यूअसली लर्नर बने रहें और नई नई चीजें सीखते रहें, जैसे टेक्नोलॉजी की भी हमने बात की, क्योंकि पोस्ट कोविड हमने देखा कि जो लोग टेक्नोलॉजी जानते थे दे कुड मैनेज दैट टाइम एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, या फॉर दैट मैटर इन एनी फील्ड दे वर बेटर ऑफ। तो वो टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और जिसे हम समझने लगे हैं, और उस तरह की डेवलपमेंट चाहे वो टेक्नोलॉजी है चाहे पैडागोजी स्किल्स है, नए नए अपडेट करते रहना जरूरी है। तो NEP का अंदर टीचर्स चैप्टर के अंदर उसके बारे में भी बात की गई है। फिर करियर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। देयर इज NPST गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है जो टीचर्स को बताएं कि किस तरह का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इनको फॉलो करके आगे बढ़ना है। एंड देन ऑब्वियसली बाय 2030 जो मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं दे आर ऑफरिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग दिस रिफॉर्म कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्रीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, स्पेशलाइज सर्टिफिकेशंस होंगे, ग्लोबल पेडागोजिकल इंटीग्रेशन होगी ताकि इफेक्टिव टीचर क्वालिटी अचीव करी जा सके। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें टीचर्स को लेकर एक पूरा बड़ा चैप्टर बनाया गया है NEP के अंदर, जिसमें बताया गया है किस तरह वो ग्रो कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज कही गई है टीचर्स के अंदर पैशन बनाए रखने के लिए, उनके अंदर एक लर्निंग क्वालिटी को जिंदा रखने के लिए कि जो आपके प्रोग्रेशन होंगे, प्रमोशंस होंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी मेरिट बेस्ड, which is a very important motivational thing which has been mentioned there, और उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल भी रहा है। और स्कूल्स के अंदर सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। there is a very important mention about collaborative school complexes, participatory governance and freedom from non-teaching duties, which is going to create vibrant inclusive learning community। तो जब हम कोलैब करके बात करते हैं, जो प्रैक्टिसेस हम जैसे रीप में एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, जो चीजें मैंने रिसर्च कर ली, मुझे पता लग गया ये पेडागोजी आर गोइंग टू वर्क, इफ आई शेयर दैट विद माय कम्युनिटी, ऑब्वियसली समबडी एल्स इज गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और वहीं अगर कोई और किसी की अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस मुझे मालूम पड़ती हैं, हम आपस में कोलैब करते हैं, तो वी कैन ऑलवेज डिलीवर द बेटर pedagogies, I guess. Yes, and acting research is also a platform for sharing one's learning. और teachers ये will when schools become complexes, तो ये sharing of learning experiences भी होगा। So let us move to the next chapter, that is about equitable and inclusive education, learning for all. ये बहुत important एक मुद्दा है, which is dedicated policy for SDGs को achieve करना है अगर हमें,
तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस की बात करनी पड़ेगी। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एक चीज है जो बच्चे अगर थोड़ा सा आप कह लीजिए मार्जिनलाइज लर्नर्स हैं, और हम स्कूल में बात कर रहे हैं तो मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको किस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं इन द मेन स्ट्रीम, उसके बारे में ये चैप्टर जो है वो हमें गाइडलाइंस देते हैं। दे टॉक अबाउट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, असेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं। So education is the key for building an inclusive society. Inclusive, no child should be denied any opportunity due to birth or background. So now the focus is on specially disadvantaged groups and migrant children also, differently abled children also, and they are proven measures like scholarships. That is a big motivation. Cash transfers, bicycles to, for to and fro school आने जाने के लिए, PCCE early childhood. In that PCCE बच्चा को जो स्कूल का fear होता है वो हट जाता है, because learning becomes enjoyable. Tutors and counselors to boost enrollment and retention. Then there's special education zones in the disadvantaged regions, hostel facilities, especially for the girl child. And to barrier-free access for all students, students with special abilities and all students, everyone is welcome in school and should be in school. बिल्कुल ऐसा है कि जब मार्जिनलाइज ग्रुप्स के हैंड होल्डिंग होता है, जब उनको हम एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फैमिली इतना उनका नहीं है, स्टेटस नहीं है, इकोनॉमिक सोशल स्टेटस नहीं होता कि वो उन बच्चों को सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली। तो वहां जब हैंड होल्डिंग होती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे पढ़कर और उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है, और अगर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होता है तो ऑब्वियसली एज अ नेशन जो है नेशन का भी फ्यूचर जो है वो ब्राइट होता है। वी आर बेसिकली इन एजुकेशन, जब एज एजुकेटर्स वी आर ऑल नेशन बिल्डर्स। Yes, तो ये absolutely. जो एनईपी ने जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमें, उनका बहुत रोल है। After all, these young learners, they are our tomorrow. यस, तो ये पीपीटी आगे नहीं बढ़ा है, आप देखिए अंकुर। अंकुर PPT, आगे कर दो। मैंने किया है बट यहाँ से वन, do I need to reshare? Okay. Anyhow, so we'll go to the next topic, ma'am, which is efficient. जो 7th chapter है NEP का, that is efficient resourcing and effective governance through school complexes clusters. Yes, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो कई सारे स्कूल हैं जिनमें 30 से भी कम स्टूडेंट्स हैं, सिंगल टीचर्स हैं, रिसोर्सेज लैक करते हैं वहां पर, और क्वालिटी एजुकेशन जो है इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंगल टीचर होने की वजह, पूरे स्कूल में एक टीचर है। तो अब आप देखिए, अभी पीछे रिपोर्ट आया था, नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया था, 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिंगल टीचर है। तो इस तरह के जब स्कूल्स को मैनेज करना है तो उसकी इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स के माध्यम से होती है। तो ये चैप्टर क्या बात कर रहे हैं? कोलैबोरेशन और शेयरिंग के बारे में। व्हाट इज NP 2020 saying? That it promotes grouping of schools to share teachers, to share labs, libraries, and extracurricular facilities, which we have already talked about under NEP. All these extracurricular facilities come, and this is motivational for the students to retain the students in school, that their learning level will not be going down. So there is a teacher to teach them, to guide them, to do the hand holding. It's a guide on the side. We're talking about the teacher being a guide on the side now. So that guide on the side is there. And maybe we use AI for it, we use assistive technologies for it. But yes, it is there. And it is the age of technology. Okay. And we talk about school complex models, whereby NEP is talking about school complex models, जहाँ पे clusters of schools जो हैं, जैसे चाहे वो आंगनवाड़ी से लेके सेकेंडरी तक के स्कूल जो है, बेसिकली दे आर गोइंग टू
हम कह रहे हैं कि वो एक क्लस्टर की काम करते हैं, दैट इन 5 to 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर Yes. अगर इस तरह के स्कूल आ रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे किसी भी तरह की लाइब्रेरीज या कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज की कमी है, टीचर्स की कमी है, ऐसे स्कूल 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दे आर गोइंग टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स और स्कूल कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरह वो वर्क करेंगे, शेयरिंग करेंगे अपने रिसोर्सेज की। एफिशिएंट गवर्नेंस की बात हुई है इसके अंदर, जहां डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफिसर्स जो हैं दे इंटरेक्ट विद क्लस्टर्स एज सिंगल यूनिट्स, एनेबलिंग ऑटोनॉमी, इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। और साथ ही साथ वहां पर जो कम्युनिटी और इनोवेशन की जो बात कही गई है, दैट इज अबाउट जॉइंट एक्टिविटीज, Yes. पब्लिक प्राइवेट पेयरिंग। केवल जो ये गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल्स ही नहीं आपस में दे विल एक्ट एज वन यूनिट, लेकिन वो हेल्प ले सकते हैं वहां की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ भी कोलैब कर सकते हैं, सो दैट जो एजुकेशन डिलीवरेंस का जो काम है वो बहुत अच्छे से आगे चलता रहे। बाल भवन की बात गई है, यूज ऑफ स्कूल्स एज सामाजिक चेतना केंद्र की बात की गई है टू एनर्जाइज कम्युनिटीज। ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं एनईपी के 7th चैप्टर के अंदर, विच इज अबाउट एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस टू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स। और इसके बाद हम चलते हैं 8वें चैप्टर में क्या मेंशन किया गया है, The last chapter है दैट इज स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इसमें जो एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए जी तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग एक्रीडिटेशन बहुत जरूरी है एंड ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में लागू होगा। जी Policy provision, the separation of roles of policy provision, regulation, but all that will be handled by independent bodies to avoid conflict of interest to improve efficiency. The main target is our young learner. So efficient running of the school is beneficial to everyone, especially the young learner. Regulation must improve outcomes, encourage innovation, and not demoralizing the teacher. In fact, the idea is to motivate the teacher. The SSSA will be set up for safety, for infrastructure, for teachers, for financial probity and accountability. And equal standards will be for all schools, private and public schools, and it will be student centric. Rights and well-being of the child, girls, adolescents, and mechanisms for the protection of the young learner. जी बिल्कुल, ये इस तरह की जो स्टैंडर्ड सेटिंग है या एक्रीडिटेशन है स्कूल एजुकेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो जब हम स्कूल चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, तो पब्लिक के ऊपर पहले भी ऑब्वियसली उनके ऊपर एक रहता था इस तरह का कुछ भी एक्रीडिटेशन रहता था, तो एक प्राइवेट लेवल पे ही हम कह लें या लोकलाइज लेवल पे, तो वो आपस में कम्पीट भी करते थे बिकॉज दे वांटेड स्टूडेंट्स टू कम टू द स्कूल। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ये हमने थोड़ा कम देखा था। विद एनईपी 2020 कमिंग इनटू एक्शन हम ये देख रहे हैं कि हर स्टेट में एक अलग नाम से जो हम बात करते हैं स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी फंक्शनल हो गई है, स्क्वाफ जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉमन सेट ऑफ बेंचमार्क पॉइंट्स दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में है, आपने इंक्लूजन के लिए क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की करिकुलम और पेडागोजीज चल रही हैं, कितनी लाइब्रेरी, कितना आपके पास लैब्स हैं, आर दे फंक्शन और नॉट, इस तरह के अलग अलग पैरामीटर्स को उसके अंदर इंक्लूड करके और ये रिव्यू होता है। एंड रिव्यू इज मोस्टली 3 to 5 years के बाद ये रिपीट किया जाता है। तो ये नहीं कि एक बार स्कूल ने वो पैरामीटर्स अचीव कर लिया और उसके बाद देखो सेडेंटरी। तो एनईपी 2020 ने बहुत इंपॉर्टेंटली ये चैप्टर को बीच में इंक्लूड किया है अबाउट एजुकेशन की स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी है, administrators की accountability है। Every stakeholder who is involved with the education system, they have to be on toes to keep the standards of education high, क्योंकि ये again we will reinforce this is about building a nation। तो कि हमारा जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, ये हमारे देश का फ्यूचर है। हमने गोल्डन एरा एंजॉय किया है एंड वी वांट दैट टू सस्टेन एंड गो ऑन, और हमारे बच्चे अच्छी वैल्यूज के साथ, अच्छी नॉलेज सिस्टम के साथ आगे बढ़ें। इसको इंश्योर करने के लिए इस तरह के एजुकेशन का एक प्रोविजन किया गया है, एनईपी ने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो नाउ लेट अस
हम वाइंडिंग अप की बात की गई है स्कूल से। शॉर्ट टर्म में हम जैसे बात कर रहे हैं, अगर कहें टीचर ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बहुत फोकस दिया गया है। टॉय बेस्ड पेडागोजी की बात यहाँ हो रही है कि भाई ऑब्वियसली अगर आप बच्चों को प्ले वे ढंग से पढ़ाएंगे तो वो उनका जो लर्निंग है वो ज्यादा होगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, तो उससे जो है उनका जो एक हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो बेटर ढंग से अचीव हो पाएंगे। Definitely, when something is so engaging and enjoyable, so the outcome will be very good. जी, और एनईपी बात करता है रिवाइज करिकुलम की। हमने बात की है कि एनईपी के अंदर क्लियर कट मेंशन है कि जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, सिलेबस फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स है, वो थोड़ा सा उसको रिड्यूस किया जाए, अलाइन किया जाए। हर चीज को बार बार से करवाने की बजाय उनको एक बहुत ही ध्यानपूर्वक सिलेबस करिकुलम को हम चूज करें, जिससे कि ज्यादा करने की बजाय, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ज्यादा फोकस हो। बच्चों को जो चीज भी करवाई जा रही है उसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो उन तक पहुंचे। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पेडागोजी का, करिकुलम और पेडागोजी का इसके अंदर मेंशन है। न्यू टेक्स्ट बुक्स आई हैं, ऑब्वियसली विद रिवाइज्ड सिलेबस हम कहेंगे, कंटेंट और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई है, जहां हम कह रहे हैं कि डिफरेंट स्कूल्स दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज एंड वर्क इन अ मोर एफिशिएंट वे। और साथ ही साथ जो रिफॉर्म्स हैं, बोर्ड एग्जाम रिफॉर्म की जैसे बात कर चुके हैं, बैकलेस डे, स्ट्रेस फ्री लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो वो बहुत जरूरी है कि जो चीजें हम सब बच्चे पढ़ रहे हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं या ई रिसोर्सेज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन चीजों को बैकलेस डे के ऊपर हंसते खेलते अप्लाई किया जाए, उनको गेम वे के थ्रू उनकी उन चीजों को देखा जाए कि कितना वो आत्मसात कर पाए हैं। तो स्ट्रेस फ्री लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है, और साथ ही साथ वोकेशनल एक्सपोजर का मेंशन है। Especially with the exposure with the industry. जी, एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री। और मोर ओवर जो बच्चे, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बहुत कुछ लर्न करके ही सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो थियोरेटिकली इतने स्ट्रांग ना हो लेकिन स्किल्स उनकी बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसे बच्चों को भी वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स को होन कर आगे बढ़ाया जा सकता है। दैट इज व्हाई हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो बच्चे को एक चांस मिलता है अपने स्किल्स को होन करने का। एंड ऑफ कोर्स मैं कहूंगी कि ये नए टेक्स्ट बुक्स जो एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, प्लीज गो थ्रू है, कितना एक्साइटिंग है ये टेक्स्ट बुक्स। जी, तो 2040 को डेडलाइन माना गया है कि एनईपी को हम फुली इम्प्लीमेंट कर पाए, इसके विजन को हम इम्प्लीमेंट कर पाए। और हम मुझे लगता है देश भर में जो एजुकेशन सिस्टम्स है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टीचर से लेकर, मतलब एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑल द स्टेक होल्डर्स, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टे इंस्पायर्ड, टू स्टे कनेक्टेड एंड कंटिन्यू बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, दो मूविंग वन स्टेप एट अ टाइम। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा, जो आज का हमारा इस वेबिनार का जो हमारा एक मोटिव था, दैट वाज टू जस्ट ब्रीफली गो टू all the chapters, all the 8 chapters, introduce all the chapters. NP जी जी, नमस्कार डॉक्टर गुलिया, अनम्यूट कर दो डॉक्टर गुलिया को। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ? Yes ma'am, it's all has been very profitable and worthful information. My heartfelt, first of all, my heartfelt gratitude for availing myself of providing this opportunity to reveal myself. Since the last 1 hour, I have been listening very intently to very respected Additional Director Bajaj sir, head of the wing REAP cell, Shri Ma'am Rupam Jha, Sarita ma'am. Very constructive and pragmatic approach we all are having. What I feel, NEP definitely a visionary documents, and each documents or each policies has its own challenges. So besides talking about challenges, obstacles, hindrances, very important is that we must focus on what is positivity, what is transformative changes are there.
So what I want to reflect, definitely it's a visionary documents, a vision that is creating a dynamic learning ecosystem for innovation, values, and lifelong excellence. We all have been discussing since the last 1 hour. We are talking about all this reflects interconnectedness. What I mean to say कि education flourishes when schools, students, teachers, parents, communities, cultures, values, technology work together in harmony to support the holistic growth of the child, which actually we are talking right now. तो NEP, what I mean to say कि NEP signifies purposeful transformation, captures the soul of education system, that is not limited to the textbooks, examinations and classrooms, but one that nurtures human. अभी मैम निर्मल मैम को सुन पा रहे हैं? नहीं, आई गेस उनका कुछ टेक्निकल इशू आया है, तो वो संजीव, हाँ संजीव सर कुछ कहना चाहते हैं? संजीव सर, जी नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा आपने ये प्रोग्राम जो है वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, और एनईपी 2020 पे बजाज साहब ने, आपने और आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जिससे मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा कि एनईपी 2020 को जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात हमने की है, हमने एलिमेंट्री जो हमारा मिडिल जो स्टेज है उसको नहीं छेड़ा है, सेकेंडरी स्टेज को 9 से 12 को हमने नहीं छेड़ा है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो क्लास, पहले हम 6 से 14 साल के बच्चों की बात करते थे, 6 से 11 की बात करते थे, इसमें हमने 3 साल के बच्चे को जोड़ा है, जो बड़ा एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने दुनिया भर की पॉलिसीज, दुनिया भर के प्रोग्राम्स, दुनिया भर के कमीशंस जो हैं वो देखे हैं लाके, अभी तक हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, लो एनरोलमेंट का और लर्निंग आउटकम्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाए। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब एक 3 साल का बच्चा एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ेगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना बड़ा आसान है, उसको स्कूल तक पहुंचाना बहुत आसान है, और वहां पे वो 3 साल की एजुकेशन लेगा, 3 साल वो बैठना सीखेगा। एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एनसीईआरटी ने पीछे करिकुलम फ्रेमवर्क का इनॉग्रेशन किया था, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और वो इम्प्लीमेंट जब उसमें लागू होगा तो नो डाउट बच्चों के लर्निंग आउटकम्स भी इंप्रूव होंगे। इसके बाद क्लास 1 to 3 में जो एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो एस्पेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चों की जो लाइफ है की एजुकेशन जो है उसको जॉयफुल लर्निंग के साथ जोड़ना, टॉय बेस्ड पेडागोजी के साथ जोड़ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ जोड़ना और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ जोड़ना, लर्निंग को इंजॉयबल बनाना, इंजॉयफुल बनाना, एक जॉयफुल लर्निंग का एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करना और रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ जो है एजुकेशन को जोड़ना। ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक थोड़ी सी बात मैं और कहूंगा कि ये जो बार बार कोलैबोरेटिव स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की जो एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मैडम ने भी जिक्र किया था कि 10-12 किलोमीटर के स्कूल्स का, अब ये जो इशू है बड़ा गंभीर है। मैं भी 2-3 बार इसकी जो मीटिंग्स हैं नीपा में होती रहती हैं, तो मैं उनमें शामिल हुआ हूँ डिस्कशन में 2-3 बार। अब देखिए चंडीगढ़ में 10-12 किलोमीटर का मतलब कुछ है, दिल्ली में कुछ है, और हिमाचल में 10-12 किलोमीटर का मतलब कुछ है। दूसरी बात है इसमें कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, अब प्राइवेट स्कूल्स में कई टाइप के स्कूल्स हैं, जैसे दून स्कूल का एग्जांपल देहरादून में ले लीजिए आप। अब वो क्यों चाहेगा कि मेरे पास वाले गांव का प्राइमरी स्कूल जहां पे बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन लर्निंग है, वो हमारे स्कूल के रिसोर्सेज को अपने साथ शेयर करे? उसके लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी, कोई फ्रेमवर्क ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ पेमेंट का सिस्टम ऐसा करना पड़ेगा कि हम सारे के सारे प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट स्कूल्स को एक कोलैबोरेटिव वे में जोड़ पाएं और गवर्नेंस का एक अच्छा सिस्टम जो है अपना डेवलप कर पाएं। क्योंकि हाई फीस प्राइवेट स्कूल्स में जिन पेरेंट्स के बच्चे चाहते हैं वे भी नहीं चाहते, और वहां की जो गवर्निंग बॉडीज है वो भी नहीं चाहेंगे हमारा स्विमिंग पूल कोई यूज करे, हमारा लैब्स कोई हमारी यूज करे, हमारे टीचर्स किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। दूसरा फिर उसकी हेडशिप, अभी जैसे हमारा क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है, क्लस्टर लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का एक क्लस्टर होता है। अब वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल संस्कृति पीएम श्री या एक हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे हम बता देते हैं कि हमारा ये क्लस्टर स्कूल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट का ऐसे जुड़ेगा तो उसमें मुश्किल हो जाएगी कि प्राइवेट स्कूल उसकी हेडशिप करेगा या गवर्नमेंट स्कूल हेडशिप करेगा।
तो गवर्नेंस का इश्यू जो है ये बड़ी 6% हम इसमें एजुकेशनल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, हालांकि शुरू से हम करते आ रहे हैं ये बात, लेकिन 6% तक तो हम आज तक कभी पहुंचे ही नहीं। मैक्सिमम 3.2 तक पहुंचे, कई बार 2.7, 2.4, 2.8, 2.9, 3 ऐसे होता है हमारा। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल एक्सपेंडिचर हम एजुकेशन पे नहीं, क्योंकि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी 100 से 500 हो गया तो उसी अनुपात में 3 का वो 3 पंजे 15 हो जाएगा, वो बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर का। एक वो जो टोटल एक्सपेंडिचर का है कॉन्सेप्ट वो तो बढ़ रहा है, लेकिन रेशो उसका नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये नहीं भी 6, अगर 3.5, 4 तक भी हो जाए तो एजुकेशन का काम हमारा चल जाएगा। एक इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तो बात आती है कि जो लोग इन सर्विस में हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को लेके अब भी एनईपी के बावजूद भी हमारी एनसीटी, हमारी पूरी बॉडीज क्रॉस रोड पे है। अगर हम 4 ईयर का इंटीग्रेटेड करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि आफ्टर +2 एक बच्चा चला जाएगा जो टीचर बनना चाहता है, लेकिन एक बच्चा मान लीजिए शुरू में टीचर नहीं बनना चाह रहा है, वो कोई एमबीबीएस करना चाह रहा है, कोई बीटेक करना चाह रहा है, कुछ और कोर्स करना चाह रहा है, और आफ्टर ग्रेजुएशन उसको लगता है नो मुझे टीचिंग में जाना है, देन व्हाट फॉर दैट, उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, ये चीजें। तो इसको लेके भी थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। और दूसरा जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की थी, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्रेज करता हूँ शुरू से इस चीज की, लेकिन मैं जहां तक एक ऑब्जर्वेशन अपनी देखता हूं कि ऊपर से ले लीजिए नीचे क्लासरूम तक, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है ना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उसका केस है, और हमारा जो ये स्कूल एजुकेशन है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, यहाँ पे कोई हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। स्टेट लेवल पे हमारा डायरेक्टरेट अलग है, हमारी मिनिस्ट्रीज अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परेशान हो गए मैम। नहीं परेशान हो बिल्कुल गए? नहीं, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, तो हम वाइंड अप करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। हाँ थैंक थैंक यू, यू सो आपके सजेशंस हम जरूर नोट कर रहे हैं, आपके सजेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आगे कभी फिर मौका, क्योंकि अभी कुछ प्रोग्राम और भी है यहाँ पर, तो वी हैव टू वाइंड अप द वेबिनार। लेकिन जो बात सिर्फ इतनी है कि जैसे आपने वो प्राइवेट और उसका जो बताया, दैट वो ट्विनिंग प्रोग्राम के अंदर दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। और जो रिसोर्सेज जहाँ सब जगह कम है उनकी कोलैब की बात एज क्लस्टर हम बात कर रही हैं। Anyways, thank you so much for your views on whatever you felt about, and you have shared those views in the webinar. We will certainly try कि वो आपकी जो बात है वो आगे भी पहुंचे और कुछ ना कुछ उन चीजों का हल भी होगा। और NEP अभी इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी काम चल रहा है, उसका जो विजन है उसको हम अभी क्या कहते हैं अडॉप्ट कर रहे हैं, विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो खत्म नहीं हुआ। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ NEP यहाँ से fruitful है या नहीं है, क्योंकि अभी वे स्टिल इन द जर्नी प्रोसेस में है। पर हैविंग सेड दैट, हमने आज जो बात की है, हमने चैलेंजेस की बात की, अपॉर्चुनिटीज की बात की, और आवाज पहुंच रही है। तो अब यहाँ पर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जो आज का हमारा वेबिनार था, जस्ट ट्राइंग टू शेयर द विजन ऑफ and core principles of NEP 2020. I would like to thank एडिशनल सर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई, और हरियाणा में क्या हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने हमसे शेयर किया। आई वुड लाइक टू थैंक रूपम मैम, जिन्होंने चैप्टर वाइज हमें बताया कि क्या NEP 2020 के अंदर क्या बातें की गई हैं, उनमें हर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कहा गया है उसके बारे में हमें जानकारी दी। आई हैव टू थैंक डॉक्टर शीनू दैया, जो हमारे रीप सेल में रिसर्च एसोसिएट हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा अकादमिक और टेक्निकल सपोर्ट रहती हैं वो साथ में, चाहे वो सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन स्टिल उनका जो सपोर्ट होता है वो दैट इज वेरी वैल्यूएबल इन क्रिएटिंग दिस वेबिनार। And I also have to thank Ankur, who is the technical support with us at Shreepsel. And I thank you all the participants and all those who are going to listen to this webinar and give us their views and what they feel and how the things can be made better. Thank you so much. And with this, we end with today. Thank you. Thank you, participants.